Well, so only to mention, we had like more than 70 contacts yesterday, which is quite huge if you compare the size of the fair to others. So for us, it's really the leading fair. सर मेरा नाम प्रशांत है. आई एम वाइस प्रेसिडेंट इन दिस कंपनी. आई हैंडल द सेल्स हियर. दिस इज़ ए जर्मन कंपनी लॉडिगे. और ये हम लोग इंडिया में भरूच में ये मशीन बनाते हैं विद जर्मन टेक्नोलॉजी. नमस्कार, मैं हूं महक भारती और मैं इस वक्त हूं ग्रेटर नोएडा में, यहां पर इंडिया एक्सपो मार्ट में, जहां लगा है एशिया का सबसे बड़ा मेला, ग्रीन एनर्जी मेला, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025, जो आने वाले कल की ऊर्जा को आज दिखा रहा है. रिन्यूएबल एनर्जी जो आज की ज़रूरत है, जो कल है, जिसको होना चाहिए ही चाहिए. बता दें कि यहाँ पर एक्सपो में 3 दिन तक चलने वाला है. ये 30 तारीख से शुरू हुआ है, अब 1 नवंबर तक चलेगा. इस एक्सपो में करीब 55,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट और 1,000 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया है. यहाँ पर देश की विदेश की कंपनियाँ दोनों ने हिस्सा लिया है, दोनों ही आई हैं. यहाँ चर्चा सिर्फ बिजली बनाने की ही नहीं, बल्कि साफ, हरित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य बनाने की है, यानी क्लीन, ग्रीन और सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी फ्यूचर, जो इंडिया 2030 का लक्ष्य लेकर चल रहा है. इसको क्लाइमेट चेंज करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और इसका यहाँ पर आज एक्सपो हो रहा है. इस बार एक्सपो में 14 हॉल्स हैं जो अलग अलग थीम पर हैं, जिनमें 10 हॉल सोलर और बायो एनर्जी तकनीक को समर्पित है. इसी साल की खास बात है, पहला एनर्जी स्टोरेज कॉन्फ्रेंस इसमें होना है. इसके साथ ही सोलर प्रीमियर लीग और ग्लोबल एग्जीबिटर शोकेस, जहां कई देशों के प्रतिनिधि अपना नवाचार दिखा रहे हैं. और यहाँ पर जैसा कि हम बात करेंगे यहाँ पे आए हुए इनोवेटर्स से, जो कि ग्रीन एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को बना रहे हैं. उनकी कंपनीज़ हैं, वो स्टार्टअप भी कर रहे हैं. उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर उनके पास क्या खास है, कैसे उनकी कंपनीज़ जो वो बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो बैटरीज, वो सोलर एनर्जी किस तरीके से इंडिया को, वर्ल्ड को क्लाइमेट चेंज से बचाने में काम कर रही है, साथ ही ग्रीन और क्लीन एनर्जी पे काम कर रही है, साथ ही इंडिया को किस तरीके से इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी दे सकती है, फ्यूचर दे सकती है. आइए बात करते हैं. व्हाट्स योर नेम? My name is Maximilian Kraus. I'm the head of innovation from the Reuter Group. We are a German-based company, but we are having a production plant in Chennai, so in the south of India. And due to electrification, we see a huge trend of products that are needed around battery packs that we are locally producing here in India for the local market. And here on the fair, it's incredible. It's so large and we get so many new contacts. It's very impressive. And as you can see, we have a quite big portfolio of products that we are sharing all over the industries that are setting new standards for safety in upcoming battery technologies. Okay. How much response are you getting from here? Well, so only to mention, we had like more than 70 contacts yesterday, which is quite huge if you compare the size of the fair to others. So for us, it's really the leading fair here in India to get in contact with battery pack suppliers and relevant customers. Also, the quality of contacts is very good. So really, you have decision makers here and also technical personnel where you can really discuss the actual matters. Tell me about your batteries, about more in brief. Okay, so one of our products is the battery venting units that will be installed on battery packs, and they are typically a combination valve. So they have a membrane for passive breathing, so that means pressure compensation in the pack during regular operations, heating up, cooling down phases. And in case of a thermal runaway, we are able to evacuate a high amount of gases to avoid the explosion of the battery pack, which is increasing the safety of the products. Also, we are doing pipe extrusion, for example, that is used to guide the water glycol mixture for the coolant of the battery packs. Is this your first time in India? No, this is actually the third time. So we have been on the first battery show in India as well, and it's incredibly growing. So I remember the first year here, it was quite small. Now it's 3 halls. Also, there's another fair, the solar fair, and there's also some connections to that. So for us, it's really good. What do you think about future of these batteries in India? Well, we see it very strongly growing, especially we see the localization of the products to the Indian market. And I think if you look here on the roads and also see like the possibilities for improvement of the atmosphere, it will help a lot also for the country.
to become more sustainable and clean. And I think it's a great opportunity here. And also, let's say, the possibilities to get solar energy for the batteries, that's just great. And it's a good opportunity here. Do you like in India? I love it, absolutely. Especially the food is super good. We have been to some great places, and I'm already looking forward to come here next year again. What kind of cuisine you like in India? Oh, well, to be honest, I don't know exact name. We had some street food in a very good restaurant. It was just tasty. So I'm looking on our local managing director that is advising me what I can eat. Also, I have to be a little bit careful about spiciness, you know. So we are not used to that. But everything I had so far was really great. तो अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा प्रदर्शनी यानी एनर्जी एग्जीबिशन है जो हर साल भारत में आयोजित होती है और इस बार इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया। इसे एशिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी मेला कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया भर से ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और नीति निर्माता यानी पॉलिसी मेकर्स एक साथ जुड़ते हैं ताकि एक ही मंच पर स्वच्छ ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी नई तकनीकों, विचारों और समाधानों को प्रदर्शित किया जा सके। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और क्यों जरूरी है? रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से दोबारा बन जाती है और खत्म नहीं होती, जैसे सोलर पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर या बायो एनर्जी, कचरे या जैव पदार्थों से बनी ऊर्जा। ये ऊर्जा कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसी फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में काफी सस्ती, साफ और टिकाऊ होती है। इसका बड़ा फायदा है, इससे प्रदूषण घटता है, कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन कम होता है और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलती है। सर मेरा नाम प्रशांत है, आई एम वाइस प्रेसिडेंट इन दिस कंपनी, आई हैंडल द सेल्स हियर। दिस इज़ अ जर्मन कंपनी लॉडिगे, और ये हम लोग इंडिया में भरूच में ये मशीन बनाते हैं विद जर्मन टेक्नोलॉजी। तो सारे ड्राइंग्स और वो सब वहाँ से आता है और हम लोग यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर द प्राइस पार्ट। दिस इज़ अ बैटरी मिक्सर। लिथियम आयन की जो बैटरी बनती है उसका जो इनिशियल प्रोसेस होता है, जो रॉ मटेरियल आता है लिथियम विद लिथियम आयन फॉस्फेट, दैट मिक्सिंग इज डन इन दिस मशीन। सो वेरी हाई होमोजेनिटी and a very short time and very pure material can be mixed in this, which is very liked by all the battery manufacturers because depending on this purity battery का charging और discharging cycle increase होता है, या battery becomes optimum. तो अभी इंडिया में आप लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? We have many our factories in Ankleshwar, Bharuch, Gujarat. Our head office is Mumbai, and our customers are many like LG Chem, Umicore, Amar Raja, Exide, many places we have supplied this machine. तो आपको लगता है कि इंडिया जो एक लेके चल रहा है कि हम 2030 तक हम लोग एक एम को टारगेट ये अचीव कर लेंगे जो हमें अचीव करना है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। आई मीन इट इज़ वेरी एविडेंट, यही होना है क्योंकि हम लोग अब तक तो सब इंपोर्ट करके यहाँ पे बनाते थे। स्लोली हमने वो टेक्नोलॉजी सीख ली है और अभी हम लोग खुद से बनाना ही वही कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव एंड देयर इज़ अ लार्ज डिमांड बाय द मार्केट बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन एंड ह्यूज EV व्हीकल्स एंड ऑल कमिंग ऑन द वे। तो इट इज़ एविडेंट कि हम लोग को टारगेट तो इजीली सरपास करेंगे ही करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है सर? ऑफ कोर्स बैटरीज के जो EV जो रिन्यूएबल एनर्जी है या जो उसके हिसाब से हमको उसके बेनिफिट्स टैक्सेशन में सब मिलते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो सिंप्लिसिटी हुआ है बिजनेस करने का विथ द न्यू थिंग्स दैट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस, जैसे GST हुआ एंड जैसे रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हुआ फ्रॉम अदर वेंडर्स इन इंडिया एंड ऑल, तो गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा है ये करने में। इसी वजह से पूरी दुनिया का फोकस अब ग्रीन एनर्जी या कहें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर है, यानी पारंपरिक ऊर्जा से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना। भारत कहां पर है इस दिशा में? भारत इस वक्त दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत ने 2030 तक का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। 2030 तक भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करेगा। अभी भारत इस सिचुएशन में है जिसमें कुल स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 44% हिस्सा अब रिन्यूएबल सोर्स से आता है।
भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोलर पावर उत्पादक बन चुका है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य सौर और पवन ऊर्जा के केंद्र बन रहे हैं। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है ताकि भविष्य में स्वच्छ ईंधन तैयार किया जा सके। REI यानी रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 क्यों जरूरी है? ये एक्सपो सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि नीति, नवाचार और निवेश का मिलन बिंदु यानी प्लेटफॉर्म है। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि नई तकनीक को और स्टार्टअप्स यहाँ अपनी खोज दिखाते हैं, जैसे सोलर पैनल, एनर्जी स्टोरेज, EV चार्जिंग सिस्टम। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार को बेहतर समझ पाते हैं। सरकार और उद्योग जगत एक साथ बैठकर भविष्य की ऊर्जा नीतियों पर चर्चा करते हैं और सबसे अहम, युवा इंजीनियरों और इनोवेटर्स को प्रेरणा मिलती है कि वो देश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने में योगदान दें। अब इसका नतीजा क्या होता है? अगर भारत इस दिशा में सफल रहता है तो कोयले पर निर्भरता घटेगी, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम होंगे और देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेगा। तो ये था ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025, जहां पर आपने लोगों को सुना, कंपनीज को सुना, जो मेड इन इंडिया कंपनीज हैं, जो बाहर से आई हैं, उन दोनों को सुना आपने कि किस तरीके से वो यहाँ पर बैटरीज बना रहे हैं, वो किस तरीके से भारत को सेल्फ लैंड की तरफ लेकर जा रहे हैं, ग्रीन और क्लीन एनर्जी की दिशा दिखा रहे हैं, भारत का भविष्य दिखा रहे हैं, दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए एक तरीका दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को सुना आपने, स्टार्टअप कंपनियों को सुना आपने, स्टार्टअप कंपनीज की क्या मुश्किलें हैं, किस तरीके से वो लोग आगे आ रहे हैं, वो किस तरीके से भारत का भविष्य बना रहे हैं। भारत आज सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता है एनर्जी के क्षेत्र में, जो बहुत ज़रूरी भी है, आज की ज़रूरत भी है, कल है भारत का, जिसके बारे में लगातार प्रधानमंत्री मोदी बात भी करते हैं, सरकार बात करती रहती है कि भारत का इस क्षेत्र में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। इसके साथ ही भारत में मेड इन इंडिया की कंपनीज इतनी सारी दिखाती हैं कि किस तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है, कंपनीज आगे आ रही हैं, भारत में ऐसी कंपनीज बन रही हैं, बैटरीज बन रही हैं जो मेड इन इंडिया है। कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं, उन चुनौतियों से भी पार पाएंगे, इंडिया ये कोशिश करता रहेगा और ऐसे ही स्टोरीज हम आपको दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं महक भारती, पॉलिटिकॉस हिंदी, नोएडा से। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.